Good evening, dear students. Thank you very much for joining me today's session. My name is Hamid Sir, and on behalf of Institute of Freelancing and Peer Finishing School, I welcome you all. आज का हमारा सेशन would be yet another very creative session होगा इंशाल्लाह और we will be doing some basic things is start. We are actually trying to learn some basic things in the Photoshop. And to start up with, just हम जो first step has that is the introduction of Photoshop, which we have done yesterday, and today we are going to start our session with the help of basic tools जो कि Photoshop में है. So let me open up this Photoshop. If I'm pretty sure that each every one of you at least you can see my Photoshop screen, and उसमें ये open हुआ एक image सारे के सारे place देख सकते हैं. Okay, so let's get started. What exactly is the Photoshop? जिस तरह मैंने yesterday वाले session में confirm, thank you. जिस तरह मैंने yesterday वाले session में आपको detail बताई थी about this Photoshop, that this one tool is relates to the pictures and photos से editing and creativity जहाँ भी आएगी when it comes to the photos, the best ever tool that humankind developed so far is number one is the Photoshop. And 80s में जब ये develop हुआ उस time से लेकर अब तक this Photoshop, this company Adobe has given us almost after every 2 years on average a new version of this Photoshop और हर नए वाले version में there's an upgrade, there's a new things in terms of the tools, in terms of the uh, plugins और नई से नई चीजें और नई से नई क्रिएटिविटी आउटपुट आती है और इसके पीछे इसकी कामयाबी के पीछे इसकी यूजर्स हैं जो क्रिएटिव माइंड के साथ इसको यूज करते हैं एंड टूल्स को लर्न करने के बाद मैक्सिमम उससे आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं. सो दैट्स इंशाल्लाह विल बी आवर एम कि हम भी इस टूल को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस तरीके से सीखेंगे सो दैट कि हम उससे बेस्ट आउटपुट ले सकें. So in the coming classes, inshallah, that's what my aim is. That I'll be explaining you almost every tool of this version which I'm using, and उसके अलावा उससे output लेना that is all up to you. I'll be explaining at least one type या किसी भी एक तरीके से मैं उसको explain करूँगा, and उसके बाद sky is the limits. अब जितना काम करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, and you can do it. But before we start, there is a very basic concept which you must have to remember it, and that is the Photoshop's basics concepts. So the basic concepts of Photoshop, which is as compared to any other software, it is different, is the concept of layers. So let me tell you that the concept of layers mean okay. Okay, it's taking some time. I don't know why. लेकिन अच्छा जी, लेयर्स बेसिकली क्या करती हैं, लेयर्स क्या चीज होती है. बिल्कुल ऐसे ही टू बेसिकली अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स बेसिकली क्या करती हैं. लेयर्स आपके लिए एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं जहां एक दूसरे के ऊपर स्टेप्स में चीज रखने से इट द लेयर्स बिकम इनविजिबल, लेकिन सारी की सारी चीजें सेपरेट लेयर्स के ऊपर होती हैं. बिल्कुल ऐसे ही जैसे एग्जैक्टली आप ट्रांसपेरेंट शीट ले लें. ट्रांसपेरेंट शीट इज अगेन नॉट 100% ट्रांसपेरेंट, लेकिन फोटोशॉप की लेयर्स आर 100% ट्रांसपेरेंट लेयर्स. इसको आप किसी भी हिसाब से अगर आप इसको यूज करना चाहें, देखना चाहें, तो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स इज समथिंग लाइक दिस, करेक्ट. सो मैं इसको जल्दी से आपके लिए बड़ा कर देता हूँ. सो दैट इज in the text, yeah, that is in terms of the spellings. This is something we call layers. अच्छा, layers कहाँ से open होती हैं? There are number of ways to open up the layers, जो कि इस throughout this course आपको step by step याद रखना पड़ेगा. And right side का जो panel है, we used to call this as a panel, उसमें सबसे top पे there is a concept. One is black, the other one square is
white on the top and that white is actually transparent. आप इस पे क्लिक करें, दिस इज एक्चुअली लेयर्स, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग, दिस इज एक्चुअली लेयर्स। देखें ये है डिफरेंट बैकग्राउंड लेयर जिसमें ये पिक्चर है और उसके ऊपर देयर इज अ लेयर जिसमें लेयर्स लिखा हुआ है, दैट इज टेक्स्ट लेयर। एंड इसके ऊपर आप जितनी मर्जी आप चाहें लेयर्स क्रिएट करते जाएं, दैट बिकम्स ट्रांसपेरेंट लेयर्स, करेक्ट। सो बार बार इस चीज को बताने का मकसद इसलिए है बिकॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेयर्स इज फोटोशॉप में बेसिकली लेयर्स की हेल्प के बगैर काम हो ही नहीं सकता। इट इज सो मच इम्पोर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोग किसी भी टूल में विदाउट द हेल्प ऑफ टूल्स कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकते, इसी तरह फोटोशॉप में इन टूल्स के साथ लेयर्स की इंपॉर्टेंट भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी टूल्स की इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट के लिए आपने कोई टूल यहाँ से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक किया एंड यू स्टार्टेड अप द टेक्स्ट। लेट्स सपोज इफ आई let's say welcome to Pakistan, if I mention it somewhere spelling में यहाँ पे या उसको text as in text में place करना चाहूँ, so what will I do? The first is the background layer, उसके ऊपर there is a text layer, this one, and इसके नीचे there is another layer which I want welcome to Pakistan, correct। और मैं इसको उठा के somewhere यहाँ पे ले आता हूँ so that it should become visible, correct। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से, ये टॉप पर क्लिक का बटन है, that means commit and करंट जो जो भी आपने एडिट्स अभी की हैं दैट इज कमिटेड, मींस यू आर ऑल सेटिस्फाइड एंड प्रेस ओके, मींस के इट इज एडिटेबल बट फॉर द टाइम बीइंग इट इज यू कैन यूज इट फॉर एनी अदर कमांड, इसके ऊपर कोई भी चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड टू गिव यू वन मोर एग्जांपल अगेन, बैकग्राउंड लेयर इज दिस वन, करेक्ट, जिसमें ये सारी की सारी पिक्चर नजर आ रही है, उसके ऊपर देयर इज अ वन लेयर दैट इज कॉल्ड लेयर्स एंड लेट मी डिलीट दिस लेयर नाउ। ये मैं सारी की सारी चीजें आपको टाइम से एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बट नाउ वी हैव क्रिएटेड अनदर लेयर दैट इज वेलकम टू पाकिस्तान, okay। And at any moment of time what you can do is you can replace the name, replace the color, जो भी आप करना चाहें आप बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इट्स बिकम वेरी इजी फॉर मी। मुझे ऑलमोस्ट कोई 20 years हो चुके हैं फोटोशॉप यूज करते हुए, सो दैट्स बिकम माय सेकंड नेचर टू यूज दिस फोटोशॉप विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट टूल्स, शॉर्टकट कीज के साथ। सो आई यूजुअली समटाइम्स जब भी मुझे कोई कमांड कोई चीज ऐसी देखनी पड़ जाए फ्रॉम द मेन्यूज, तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन माय एम इज कि वो स्टेज आपकी भी आए और आप भी आहिस्ता 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 करते करते उस स्टेज पे विद इन 1 year टाइम पहुंच जाए। At the time when I started, there was no one to explain us, no one to tell us कि ये कैसे, ये सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, ये क्या करता है। नो वन, किसी को भी नहीं आइडिया था, इवन वी वर स्टूडेंट एट दैट टाइम। लेकिन फिर अल्लाह ताला जब आप कोशिश करते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए वसीले और मदद पैदा करता रहता है, आपके लिए डिफरेंट चीज़ें आती रही आती रही आती रही और करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड द स्टेज के now it is very easy tool, we made it very easy for others to understand, and within 1 month's time I am giving you this guarantee, with less than 1 month's time you will be so much proficient कि आप खुद से creative काम करना शुरू कर देंगे। So dear student, coming back to the concept of layers, layers को आपने बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है कि you can create the layers and delete the layers from this menu राइट साइड। और अगर यहाँ से किसी के लिए राइट पैनल से ओपन नहीं हो रहा, सो आप जाएं विंडोज मेन्यू में और यहाँ से जाके ये लेयर्स ओपन कर लें, इस पर क्लिक करेंगे तब भी ओपन हो जाएगा। एंड लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट कीज के थ्रू इसको ओपन करना चाहें, सो द शॉर्टकट की इज F7, F7 प्रेस करें and here it comes the layers panel will open up, correct। so F7 दोबारा प्रेस करें तो automatically that would hide, लेकिन of course that will remain in this space for you to use it at any time, correct। so let me open up this, let me press F7 shortcut key and open up। अब हम जाते हैं क्रिएट करने के लिए न्यू ट्रांसपेरेंट layers, okay। and for example if you want to create 100 different
layers, या लेट्स से अभी तो 100 इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, लेकिन चले मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 न्यू लेयर्स क्रिएट कर रहा हूँ. इट रियली डजेंट मैटर फॉर दिस इमेज कि इसके ऊपर, इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर वन लेयर इज दिस टेक्स्ट, उसके ऊपर एक और लेयर है, उसके ऊपर फिर लेयर नंबर 1 है, लेयर नंबर 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10. इट रियली डजेंट मैटर. द रीजन, these are 100% transparent layers. 100% transparent layers means that you can see through it 100% without a single pixel, without a single thing. ये आपके लिए crystal clear available है. So that is the beauty of Photoshop, and that is an awesome tool. With the help of these layers concept, they made us so easy कि हम हर लेयर में अपनी मर्जी से चीज प्लेस कर सकते हैं, एंड वी कैन मूव इट अपनी मर्जी से फ्रॉम हेयर टू देयर है, फ्रॉम देयर टू एनीवेयर. करेक्ट. अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस इज ऑफ कोर्स, लेयर्स का एडवांटेज इज कि हर इंडिपेंडेंट लेयर में आप इंडिपेंडेंट चीज प्लेस कर सकते हैं. So that is the advantage. But the disadvantage is that you must have to remember always कि लेयर नंबर 1 में क्या था, लेयर नंबर 2 में क्या था, 3 में क्या प्लेस करना है, 4 में क्या प्लेस करना है, 5 में किस चीज को प्लेस करना है. लेकिन it seems that it is difficult, but to be honest, यकीन करें ये ऐसे ही है कि जैसे आप फोटोशॉप, आप कैसे ओपन करना है, इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप ओपन हो जाएगा. सो दैट मीन्स के ये बिल्कुल वैसे ही, इट बिकम्स एग्जैक्टली लाइक दिस, राइट. सो लेट्स स्टार्ट बाय दिस. लेयर नंबर 10 को मैं अगर डिलीट करना चाहूँ, दैट इज अननेसेसरी. फॉर द टाइम बीइंग आई जस्ट वांट कि मेरे पास बहुत ज्यादा अननेसेसरी लेयर्स हो गई हैं. सो लेट मी डिलीट दिस वन. सो यहाँ से जहाँ से आप क्रिएट न्यू लेयर, इसी पैनल के बॉटम पे द सेकेंड लास्ट आइकॉन इज क्रिएट न्यू लेयर, उसी के साथ इज डिलीट लेयर. आप जिस लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वन बाय वन करके डिलीट होना शुरू हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इफ यू आर इंटरेस्टेड वेलकम टू पाकिस्तान भी डिलीट करना चाहें, यस यू कैन. करेक्ट. मोरओवर इसके बाद लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी की सारी बाय मिस्टेक यू हैव डिलीटेड द लास्ट वन, आई जस्ट नॉट इंटरेस्टेड कि वेलकम टू पाकिस्तान भी डिलीट हो गया, दैट शुड कम बैक, that should be reverted back. So there's a command that is called undo, and with the help of edit, undo, delete layers, that will वापस आ जाएगी. that will be back. I mean the last जो चीज आपने कमांड की है, that will be undo, that will be back और automatically with the help of undo. लेकिन keep in mind for the time being कि हमारे पास undo की ऑप्शन सिर्फ एक होती है, राइट. ये देखें, undo के बाद redo, either redo delete or undo delete. ओके. बट लेट्स सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड कि मुझे वो लेयर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी चाहिए, तो there is a different method in the Photoshop. You must have to remember this. वो क्या method है? That method is go to Windows and go to history. Okay, history will tell you कि last time आपने क्या क्या actions किए थे. ओके. आप ये देखें, गौर से इसको प्लेस करते जाएं. मैं इसको उठा के थोड़ी देर के लिए इधर ले आता हूँ सो दैट कि आपको आइडिया होता जाए. ये देखें, मैं लेट सपोज, सॉरी, मैं इसको लास्ट वाली कमांड को मैं करता हूँ डिलीट. यस. ये देखें, लेयर नंबर 1 वापस, इसको मैं करता हूँ डिलीट. यस. लेयर नंबर 2 वापस, एंड इसी तरह मैं सारी करते 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 डिलीट करता रहूँगा. सो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी, लेट सपोज मैं आखिरी को जाके सिलेक्ट करता हूँ और यस कर देता हूँ, तो no, you have to start from the bottom. So okay, let's start from the bottom. मैं इसको delete करूँगा. Yes, and layer number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल वैसे ही सारी की सारी वापस आती है. So that is something, the basic concepts of first layers, and then उसके बाद moving of layers का create of new layers and delete of new layers. ये वो बेसिक प्रिंसिपल है जो आपने इस थ्रू आउट दिस कोर्स, या एटलीस्ट जब भी आपने फोटोशॉप ओपन करके काम करना है, दिस इज समथिंग यू
always have to remember. And let's suppose by mistake अगर मैंने welcome to ये चले let me bring in, मैं इनको for the time being कर देता हूँ delete. See, ठीक है, for that was just for the experiment to show you कि how from the history can you revert back to the last things जो भी आपने की हैं. And that was just one example. Okay, let me create a new layer. And new layer create करने के बाद let's go to the menu. And the first thing is move. करेक्ट. मूव क्या करता है? मूव बेसिकली जो भी चीज किसी भी लेयर के ऊपर पड़ी हुई है इसको मूव करने के लिए, फॉर द टाइम बीइंग आई एम इंटरेस्टेड कि वेलकम टू पाकिस्तान शुड बी प्लेस समवेयर हियर, so that means we have to move this text from here to here. So this text is where, that is question number one, that is layer number this. So let's select the appropriate layer and then you have to move. करेक्ट. ये मूव का टूल ये आपने पिक किया एंड वेलकम टू पाकिस्तान को उठाकर यहाँ पे प्लेस कर दिया. नाउ दैट इज अनदर योर चॉइस कि आप इसका कलर ग्रीन करना चाहते हैं, कोई और करना चाहते हैं, सो दैट इज अ सेपरेट. एंड लेटर यू डिसाइड कि नो दिस इज नॉट द वे, जहाँ पे था वहीं पे ज़्यादा बेहतर है, तो मूव टूल इज द ओनली टूल जिसकी मदद से आप इजीली किसी टेक्स्ट को उठाकर किसी भी जगह के ऊपर प्लेस कर सकते. Correct. So that is first thing, move tool. Correct. And the shortcut key of move tool is V. V stands for victory. Right. V press करेंगे, किसी भी इस टूल को सिलेक्ट किया हुआ आपने एंड V प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली टूल वो सिलेक्ट हो जाएगा. आपने कोई और टूल सिलेक्ट किया हुआ है, आप V प्रेस करें दोबारा से ऑटोमेटिकली वो टूल सिलेक्ट हो जाएगा. लेकिन लेयर नंबर वन हमने क्रिएट की जस्ट टू मेक अनदर न्यू थिंग एंड दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर. ठीक है, या रेक्टेंगल. रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के लिए एज आई टोल्ड यू इन द पावर पॉइंट लेक्चर्स कि आप बॉक्स सेलेक्ट करें, किसी भी इरेगुलर शेप का आप सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड यू मस्ट हैव टू रिमेंबर सो फार कि अगर मैं इसको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ तो व्हाट एग्जैक्टली इज द की जो कि मैंने इसके साथ यूटिलाइज करनी है. इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स प्लीज? Key. Shift. Shift key. Shift key. Excellent. Perfect. So let me undo and thank you very much. You can Harim, very well done. You can mute yourself now. Okay, Ji. Let's select this one. Absolutely right. Correct. Everyone. That is why I am proud of my students that you remember this, and not only remember this, बल्कि जैसे ही आपको वो टाइम आए उस टाइम पे the time to call in, आप फौरन से instantly बता देते हैं. Okay, जी. Let me create again in the layer number one. What you have to do is you have to create the rectangle. So rectangle को यहाँ से select करें. इस शेप के बजाय मैं shift की को प्रेस करता हूँ and have a look at this. Okay, so that means now मैंने just shift की को प्रेस किया हुआ है and with the help of shift की मैं exact square बना. But I just want कि इतना सा square लगे. Correct? और इसके बाद this square has to be fill in with some colors. Okay, so यहीं पे there's a button that is called a paint bucket, या एक पेंट का जिस तरह एक काइंड ऑफ वो बॉक्स डब्बा या समथिंग लाइक पेंट का, ये इसको पिक करें एंड वट एवर द कलर विच यू वांट टू प्लेस इनसाइड दिस वन यहाँ से आप पिक करें. लेट्स सपोज रेड वन एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस. अब क्या हुआ? बेसिकली हुआ कि ये रेड कलर प्लेस हुआ, लेकिन रेड कलर किधर प्लेस हुआ? मैंने गलती से कोई गलत चीज सेलेक्ट की हुई थी. ओके, दैट्स नो प्रॉब्लम. राइट, मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड लेट मी प्लेस दिस वन एंड लेट सपोज दिस, क्रिएट अ न्यू लेयर एंड प्रेस दिस कंट्रोल. ये वाली मैं वाइट कलर प्लेस कर देता हूँ, या वाइट कलर के बजाय ये वाला कलर प्लेस कर देता हूँ. सो दैट मीन्स के नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रेसिंग वी या मूव टूल से अब लेयर नंबर वन को मैं बड़ा इजीली मूव कर सकता हूँ. लेट्स सपोज वेलकम टू पाकिस्तान. इफ आई एम इंटरेस्टेड दिस इज फ्लैग ऑफ पाकिस्तान और समथिंग लाइक दिस, जो कि इंशाल्लाह हम आने वाले कुछ सेशंस में फ्लैग ऑफ पाकिस्तान जरूर बनाएंगे, सो दैट वी शुड प्लेस इट समवेयर हियर. ओके, इसी पिक्चर के अंदर हमने वो फ्लैग ऑफ पाकिस्तान हमने प्लेस करना है
and for the time being let's say this is the flag of Pakistan जो कि हमने यहाँ पे place किया. But keep in mind that right now with the help of move tool we are moving what? We are moving layer number 1, just layer number 1. So that means कि इसके move करने से कोई और चीज move नहीं होगी. लेकिन for example if I am interested कि layer number 1 move हो और the selected layer is the text layer, so अब क्या होगा? I am interested कि मैं इस red box को यहाँ से move करूँ, तो red box अच्छा ये auto selected है, मैं auto selected को by the way off कर देता हूँ so that कि आपके लिए experiment sorry experiment easy हो जाए. So the selected layer is the text one. मैं text को pick करता हूँ और move करने की कोशिश करता हूँ. Okay, असल में मैंने shortcuts अपनी मर्जी से सारी की सारी की हुई हैं, इसलिए it is creating problem. Okay, like for example, look at this. मैंने shortcut keys को सारी की सारी अपनी shortcut keys को for the time being stop कर दी है. Layer number 1 को मैंने choose किया. This is layer number 1 moving and welcome to Pakistan. Welcome to Pakistan is the text which we are moving, right? So that means by default जो layer selected होगी सिर्फ और सिर्फ वही move होगी, कोई दूसरी और layer उसके साथ move नहीं हो सकती. Let's suppose मैं इस background layer को for the time being move करना चाह रहा हूँ. No, मैं पाकिस्तान को move करना चाह रहा हूँ, वो नहीं move होगी. The reason मैं PA के I से पकड़ के इसको move करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये text move नहीं हो रहा. I am interested कि मैं पाकिस्तान को नीचे लेके आऊँ. It's not moving. The reason the selected layer is layer number 1. अगर आपने text layer को select किया है तो फिर आप box को move नहीं कर सकते. Now I am interested कि let's suppose this is flag of Pakistan. I want कि मैं इसको उठा के ऊपर ले जाऊँ. That will not go. The reason is the selected layer is this one. So this is the basic concept जिससे आपने काम start करना है. So I just do not want कि मैं इससे ज़्यादा further इसको explain करूँ. That is the basic concept of layers and throughout not only this course बल्कि जब तक आप Photoshop पे काम करेंगे this one concept will remain the same. और ये वो concept है जो किसी और software में exactly in such terms in this terms बिल्कुल ऐसे ही replicate नहीं होता. ठीक है, Illustrator में जब पहुंचेंगे तो फिर मैं आपको explain करूँगा वहाँ उसकी अपनी एक environment के plus and minuses. So this is something I was interested कि मैं layer number 1 को for the time being करूँ delete so that me sorry मैंने ये new इसको उठा के मैंने ये करना है delete. या there are two ways to delete this. One is कि layer को select करें और delete के बटन पे press करें, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको उठा के drag करते हुए लाएं और delete वाले बटन पे press कर दें, आइकॉन पे प्लेस करें, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाए. Okay, so that is the first experiment of creating new layer, deleting new layer, creating new layer and placing something like for example this tool जो भी चीज. अब हम जाते हैं, let's move to one step ahead. With the help of this basic tool हम जाके क्या करने लगे, हम एक पाकिस्तान का flag create करते हैं. Okay, so for creation of flag first thing is very important thing जो कि concept wise जैसा मैंने बताया आपको, the first thing जो करनी है वो आपने क्या करनी है. कौन बंदा chat box में confirm करेगा. जैसे ही हमने start किया what exactly is the first thing जो कि अभी हमें करनी चाहिए. We are right now sitting in the Photoshop and the first thing we are going to create is what? Is there anyone who can just explain? Areen, go ahead. Very well done. Very well done. Absolutely, Abdullah. You have nailed down. Cut rectangle, no. Mahanur, as I told you earlier, create the new layer first. Remember this. अगर मैं इसी जगह पे जाके अगर मैं create new layer नहीं करूँगा, so that will become a problem for me because बहुत सारी layers इकट्ठी mix हो जाएंगी, जिसका experiment मैं अब आपके सामने कर रहा हूँ. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्रिएट फर्स्ट टाइम अ न्यू लेयर और उसके बाद आपको दिखाने के लिए मैं भूल जाऊंगा कि मैंने नई लेयर क्रिएट करनी थी. एंड द ग्रीन कलर व्हिच वी आर सपोज्ड टू सेलेक्ट इज लेट्स सपोज दिस वन एंड लेट मी क्लिक ऑन दिस कलर. वन सिंगल क्लिक के ऊपर यू कैन गो टू दिस कलर पैनल. कलर पिकर से क्या होगा,
कलर पिकर देयर आर टू वेज। वन इज कि आप इसके सर्कल स्क्वायर के अंदर इस सर्कल को जिस जगह पे भी प्लेस करेंगे ये आपका कलर सेलेक्टेड ये वाला आ जाएगा। करंट स्टैम्प कलर ये वाला जो है दैट इज दिस वन एंड यू हैव सेलेक्टेड दिस वन, राइट। आप इसको उठा के ब्लैक पे ले, करंट इज ऑफ कोर्स रेड एंड द न्यू वन इज ब्लैक जो आपने सेलेक्ट किया। एंड फर्दर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड फ्रॉम रेड टू डार्क ब्लैक, पूरी की पूरी कलर वेरिएशन से आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप यहाँ सेंटर से क्लिक करें और इसको उठा के ले हैं टूवर्ड्स द येलोइश कलर। ओके, नाउ इट बिकम्स डार्क येलोइश, एंड येलोइश से आप कोई भी कलर आप यहाँ से अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। बट वी आर इंटरेस्टेड कि हम चाहे ग्रीन जो कि पाकिस्तान का कलर एंड फ्लैग का कलर इज ऑलमोस्ट ऑफ दिस कैटेगरी। ओके, सो लेट्स पिक दिस वन एंड इसके अंदर मैं विद द हेल्प ऑफ पेंट बकेट टूल प्लेस करता हूँ फ्लैग कलर। अब अनफॉर्चुनेटली ये शॉर्टकट कीज जो कि इसके ऊपर इनेबल हुई भी हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये प्लेस कर रहे हैं। एनीवे लेट्स डू दिस वन नाउ। फोरग्राउंड, ओके फोरग्राउंड, ओके ये आ गया। ओके नाउ लेट्स सी, अगर मैं ऐसे करता हूँ डीसेलेक्ट फॉर द टाइम बीइंग, मैं करता हूँ और इसके अंदर मैंने प्लेस करना है इतना सा वाइट एरिया। इज दिस ओके? मैं इतने से एरिया में वाइट प्लेस कर दूं। सो वाइट कलर इज ऑलरेडी देयर, हम इसको इस विद द हेल्प ऑफ दिस टूल स्विच करवा देते हैं ग्रीन को नीचे एंड वाइट को ऊपर एंड दोबारा पेंट बकेट टूल से इसके अंदर प्लेस कर देते हैं वाइट कलर। लेकिन लेट्स सपोज बाय मिस्टेक अगर मैं क्लिक कर दूं बाहर, देन व्हाट वुड हैपन? ये देखें, अब मैंने विदाउट क्रिएटिंग न्यू लेयर एक मिस्टेक कर दी, सो दैट मींस हुआ क्या, अब वो सारा का सारा उसके ऊपर प्लेस हो गया। नाउ दिस बिकम वन लेयर। अब क्या कर सकते हैं, अब आपके लिए जस्ट जितना जल्दी हो सकता है इसको अनडू कर दें एंड अनडू बिकॉज मैं मूव कर चुका हूँ, दिस इज डिफरेंट कमांड्स। सो जितनी दफा मूव करते जाएंगे वो उसकी हिस्ट्री में देयर इज अ न्यू कमांड व्हिच इज ऑटोमेटिकली पॉपिंग आउट करती जा रही करेक्ट। सो दैट मीन्स कि मैं यहाँ से करते करते इसको डिलीट करता रहता हूँ एंड प्रेस एंटर 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 एंड हियर इट इज। यस, हे यहाँ तक आके मेरे पास ये सारी की सारी चीज वापस आ गई। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसी के अंदर रहते हुए इस लेयर के बाद एक नई लेयर क्रिएट करूंगा और उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जूम इन करके इतना सा एरिया सिर्फ सेलेक्ट करूं और इसके अंदर वाइट एरिया सेलेक्ट करूं। ओके, अब मैंने देखें ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया। नाउ व्हाट आई डू इज कि मैं पेंट बकेट से जाके इसके अंदर प्लेस कर दूंगा, बट एज इट इज इन द न्यू लेयर सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब मैं चाहूँ तो इसको अपनी मर्जी से थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, इधर किसी भी जगह के ऊपर प्लेस करना चाहूँ, आई कैन प्लेस इट वेरी इजी। आई कैन रोटेट इट, आई कैन मेक इट बिगर एंड जो भी अब मैं करना चाहूँ मैं इसके साथ कर सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट। सो what is the next? The next is कि we have to create a star and star के बाद what else? A moon जो कि पाकिस्तान के फ्लैग का पार्ट है। So there are so many ways जिनकी मदद से हम create कर सकते हैं। So the first thing what we have to do to create, before creating anything, what we have to do, कौन बताएगा? So Mahnur, are you there? Can you please explain what is the thing? कोई भी चीज हमने यस सर, न्यू लेयर फिर new से layer, बनाएंगे। correct, absolutely, you nailed down, and you must have to remember this that before doing anything you have to create a new layer first. Thank you very much for responding me instantly without wasting time. So let's move to the second tool which we are going to create. This is something rectangle and square and marquee tool. अगर मैं इसके ऊपर इसके साथ बॉटम पे देखें, there is a small arrow that is at the right bottom. That means कि इसके अंदर इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे टूल हैं। आप इस पे क्लिक करें for more than a second, it will pop out like elliptical marquee tool and उसके अलावा single row and single column. Let's suppose single row and single column as such not, we don't use as such
दैट मच, लेकिन दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू यूज. अब हम करेंगे क्या? अब हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे, ओके, टू क्रिएट अ स्टार. ओके, अब आप क्योंकि ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली अब आपका टाइम थोड़ा सा जो हुआ उसकी मदद से, जिस तरह मैंने बार बार बताया, इस सर्कल को आपने सर्कल कंसिडर नहीं करना. यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड कि हम यहाँ से क्या चीज़ क्रिएट करने जा रहे हैं. मैं जैसे ही ये क्रिएट करता जाऊँ, स्टार्ट करता जाऊँ, फौरन आपके माइंड में वो चीज़ आ जानी चाहिए कि ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट थिंग जो कि क्रिएट कर, एंड दैट इज with new tool आपने create कर दिया. We are going to create a moon from this. So let's place, okay, so that means कि ये भी मैंने गलत किया हुआ था. Okay, let me do this and control D, enter 0, enter now again. असल में मैं during the development work मैं सारे के सारे shortcuts अपनी मर्जी के हिसाब से रख लेता हूँ so that कि मुझे बार बार चीज़ें place ना करनी पड़े. So अब ये बिल्कुल absolutely perfect आएगा. So what we have to do is इस circle में से we have to cut out some portion to create a moon. वो कैसे? अब हम मैं इस लेयर में से करूँगा ये कि देखिए मूव मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड कि मैं इसकी सिलेक्शन को मूव करूँ, ये सिलेक्टेड एरिया को मूव करूँ, नॉट ओनली द फील्ड एरिया. तो सिलेक्शन के लिए मेन्यू में जाके द फर्स्ट थिंग विच आई हैव टू डू इज टू ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन. ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन से मैं इसको सिलेक्शन को उठा के थोड़ा सा इधर ले आऊँगा, समथिंग लाइक क्लोजर टू दिस. ओके, एंड मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ये यहाँ से ओके प्रेस कर देता हूँ. सो अब मैंने उसी लेयर में रहते हुए इसको कर देना है डिलीट. इट इज एज सिंपल एज दैट. अब आप, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको एग्जैक्टली आइडिया व्हाई इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम लाइक दिस. आई डोंट नो, इसको भी चेक कर लेते हैं. करेक्ट. So let me see why it is. Okay, RST, enter. Okay, now it's okay. Let's suppose this is the first thing जो कि हमने create करनी थी. अब इसके बाद हमने create करना है अपना star. So how to create a star? There is a very simple method for this. A shortcut method, there are so many, लेकिन for the time being I just want to move to the next tool जो इसी के साथ third one है, that is polygonal lasso tool. That stands for shortcut key is L, and polygonal lasso tool क्या करता है आपके लिए, एक नई लेयर क्रिएट करें सबसे पहले, और उस लेयर में जाके विद द हेल्प ऑफ दिस टूल हम एक क्रिएट करने जा रहे हैं. व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टार विद द हेल्प ऑफ बेसिक शेप्स, एंड दैट्स इट. अब हमने नई लेयर क्रिएट कर ली, नई लेयर में ये चीज़ पाथ बना लिया. पाथ में अब आपने क्या करना है, अब हमने फिल करना है कलर, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस टूल. क्लिक किया, यहाँ प्लेस किया, एंड कंट्रोल डी या डी सेलेक्ट, और या इसी से सर्कल से बाहर क्लिक किया. सो ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा सा इरेगुलर शेप में एक मून क्रिएट. लेकिन ये चूंकि जल्दी में बनाया है, दैट इज व्हाई इट इज समथिंग लाइक दिस. करेक्ट. अब हम इसको कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग छोटा या बड़ा अपनी मर्जी से. सो द कमांड फॉर दिस इज टू मेक इट स्मॉलर और बिगर एज कंपेयर टू दिस. ये थोड़ा सा बड़ा हो गया. अब हमने इसको करना है छोटा. सो एडिट से जाके फ्री ट्रांसफॉर्म, वेयर इज फ्री ट्रांसफॉर्म, एंड कंट्रोल प्लस टी इज द शॉर्टकट की. मैं इसको अगर मैं इसको यूं छोटा करना चाहूँ तब भी कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरह आपको पावर पॉइंट ने बताया था कि एंगल से कौन सी की प्रेस करने के बाद इसको मूव करूंगा तो ये एग्जैक्ट उसी शेप में छोटा होगा. इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी? Sure. Absolutely perfect. Brilliant. Excellent. Okay, so that's how we reached our desired result. अब आपकी मर्जी है, choice is yours, कि अब आप इसको जिधर मर्जी प्लेस करना चाहें. We are interested, स्टार को उठा के इधर ले जाएं, इसको उठा इसको लेके जाने के लिए अब हमने क्या करना? ओ दैट इज समथिंग रॉन्ग. इसको लेके जाने के लिए आपने लेयर नंबर 3 को मूव करना. लेयर नंबर 3 को मूव करेंगे तो लेयर नंबर 4 उधर रह जाएगी. सो लेयर नंबर 4 को पिक करें और उठा के बेशक से भी इधर लें. करेक्ट. लेकिन लेट मी अनडू दिस
और अगर मैं सारे को मूव करना चाहूँ तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप इसको पिक करें। कौन सी वो शॉर्टकट की थी पावर पॉइंट में जिसकी मदद से हम ये काम करते थे कि सबको इकट्ठा सेलेक्ट कर लेते थे, एक की प्रेस करते थे और सारे के सारे सिलेक्टेड हो जाते थे? Control. इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी? परफेक्ट, नो, कंट्रोल ए नॉट, शिफ्ट की। शिफ्ट की से आप ऑटोमेटिकली दिस वन प्लस शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, ये ऑटोमेटिकली आप सारी की सारी सिलेक्टेड। नाउ इन सारी की सारी सिलेक्टेड को एब्सोल्युटली करेक्ट शिफ्ट की के साथ आप मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पे। सो वी आर डन, करेक्ट। सो ये है पहले 3 टूल्स जो आज हमने किए। दी ओवरऑल आइडिया इज कि मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा आप लोगों को, एंड एक्सप्लेन करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा आप लोगों को साथ साथ उन्हीं की प्रैक्टिस एज एन टूल्स भी करवाते हैं। सो द टुडेज टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इज फर्स्ट कि आप सारे के सारे इस वीडियो को बी वेरी केयरफुल, एक एक टॉपिक एक एक वीडियो को रिव्यू करें गौर से। we will upload this, I'm going to upload this today's lecture on institute of freelancing के चैनल पे। आप वहाँ से जाके इसको रिव्यू करें एंड बार बार रिव्यू करें, एंड रिव्यू करने के बाद इसकी इन 3 टूल्स की प्रैक्टिस करें। सो आई एम लीस्ट कंसर्न कि आप पाकिस्तान का फ्लैग बनाएं या कोई और चीज़ बनाएं, इट रियली डजंट मैटर, लेकिन द आइडिया इज टू गेट द हेल्प फ्रॉम मूव, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल टूल, ठीक है। और इसके बाद दैट्स द इररेगुलर शेप जिस तरह पावर पॉइंट में हमने डेवलप की थी वैसे ही जिस तरह की, करेक्ट। सो दैट इज योर टुमारोज टास्क। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सारे के सारे यूट्यूब सॉरी चैनल में अगर भी किसी का भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, there's another way is that you can go to YouTube channel, वहाँ जाके भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, I can reply you even there also, right? So dear students, thank you very much for joining me today's session. It was indeed a pleasure and such a beautiful जो चीज़ आज हमने की, बड़ा मज़ा आया क्रिएटिव काम करने से। और कल के टॉपिक में विद द हेल्प ऑफ दीज एंड 2-3 मोर टूल्स हम नई से नई चीज़ क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एब्सोल्युटली हम नई से नई चीज़ क्रिएट करेंगे और आपके लिए नई से नई प्रोडक्टिव चीज़ें लाते हैं, करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, जज़ाकल्लाह।